بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نیکیوں کا حساب قیامت میں آسان ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی سے کیا گیا عمل زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ نیکیوں کو باقاعدگی سے کریں، چاہے چھوٹی ہوں۔ کیا غصہ کرنا ہمیشہ گناہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی آگ ہے اور غصہ کو قابو پانا ایمان کی علامت ہے۔ غصہ کرنا فطری ہے، لیکن اسے قابو کرنا فرض ہے۔ کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچا اور امین ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امین اور سچا مسلمان جنتی ہے۔ صداقت ایمان کی بنیاد ہے۔ کیا کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ شیطان کا پتہ ہے۔ جھوٹ کبھی جائز نہیں، سوائے ایسے حالات میں جہاں مفاہمت کے لیے سچائی سے زیادہ نرمی ضروری ہو۔ کیا والدین کی خدمت کرنا اسلام میں اہم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیا غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے؟ اسلام میں سب کے ساتھ عدل و حسن سلوک فرض ہے، لیکن قریبی دوستی اور رازداری میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ دین پر اثر نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ کیا قرض لینا حرام ہے؟ قرض لینا حرام نہیں، اگر ادائیگی کا وعدہ پورا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنا نیکی ہے، لیکن سود لینا حرام ہے۔ کیا طلاق کا حل ہمیشہ ہی علیحدگی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلاق بدترین چیز ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، اس لیے اس سے بچو، پہلے صلح کرو اور کوشش کرو۔ کیا اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقین اور صبر ضروری ہے۔ کیا اللہ سے سوال کرنا یا گڑ گڑانا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے، اللہ سے گڑ گڑانا دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کیا غسل جنابت فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل جنابت کیا اور نماز پڑھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غسل جنابت فرض ہے۔ کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو، دعا والدین کی عمر دراز کرتی ہے۔ کیا روزانہ صدقہ دینا لازم ہے؟ صدقہ نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ تھوڑا صدقہ کرے وہ رزق میں برکت پائے گا، لازم نہیں مگر مستحب ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نیکی کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ کیا کسی کو معاف کرنا بھی عبادت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، معافی دین کی روح ہے۔
क्या नमाज में खुशू खुजू जरूरी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे देखा पढ़ते। खुशू जरूरी है क्योंकि ये दिल की हालत है। क्या किसी बीमार के पास जाकर दुआ करना अफजल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे भाई बीमार हो तो उनके पास जाकर दुआ करो। क्या मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवक्कल अल्लाह पर रखो और कोशिश करो। नहाते वक्त पेशाब आना किस चीज की अलामत है? ये आम तौर पर गुर्दों या मसाने की कमजोरी की अलामत हो सकती है। बाज़ औक़ात जिस्म पर ठंडा पानी पड़ने से भी ये कैफियत पैदा हो जाती है। कानों के अंदर खारिश होना किस चीज की अलामत है? ये आम तौर पर एलर्जी, कान के इन्फेक्शन या सफाई की कमी की अलामत है। औरत की ठोड़ी पर बाल आना किस चीज की अलामत है? ये हार्मोन्स के बिगाड़ हैं। आम खाने के फौरन बाद क्या पीने से मौत वाक़या हो सकती है? आम खाने के फौरन बाद बर्फ वाला ठंडा पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए पेट की तेज खराबी या बाज़ सूरतों में दिल पर बोझ पड़ता है। इसीलिए पुराने लोग कहते हैं कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। नहाने में देर लगाने वाली औरत में कौन सी बुराई होती है? रवायत के मुताबिक जो औरत नहाने में बिला वजह देर लगाती है उसे काहिली, वक्त का ज़िया और सफाई में लापरवाही की आदत समझा जाता है और ये उसकी शख्सियत पर मनफी असर डालती है। किस औरत के साथ सोने से गुनाह माफ होते हैं? ऐसी बात शरीयत में किसी सही हदीस या कुरान से साबित नहीं। ये अवाम में फैली गलत रवायत है। गुनाह माफ होने का ताल्लुक तौबा और नेक अमाल से है। वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से घर में मुसीबत आती है? इस्लाम में ऐसी कोई नमाज नहीं जिसके पढ़ने से मुसीबत आए। तमाम नमाजें बरकत और रहमत का सबब हैं। ये महज बेबुनियाद बात है। मरहूम वालदैन अगर ख्वाब में ना आए तो उसकी बड़ी वजह क्या है? ये ज़रूरी नहीं कि वालदैन का ख्वाब में आना या ना आना किसी खास बात की अलामत हो। कभी ये अल्लाह की हिकमत पर होता है और कभी जहन की कैफियत पर। आयतल कुर्सी को किस वक्त पढ़ने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है? आयतल कुर्सी हर वक्त पढ़ने से फायदा ही होता है। नुकसान का तस्वुर गलत है क्योंकि ये कुरान की आयत है और हर हाल में बाइस बरकत है। खाना खाते हुए दांतों के नीचे जुबान का आना किस चीज की अलामत है? ये कोई खास अलामत नहीं बल्कि खाने के दौरान बेध्यानी या जल्दी में चबाने की वजह से जुबान का दांतों में आ जाना एक आम बात है। कौन सी चीज का घर में ज्यादा हो जाना जादू की अलामत है? चींटियां। क़यामत के रोज मुसलमान किस जानवर पर बैठकर पुल सिरात का सफर पार करेंगे? कुर्बानी के जानवर पर। खाना खाने के बाद नींद आना किस चीज की निशानी है? अच्छी सेहत की। किस इंसान से मिलने से गुनाह माफ हो जाते हैं? मेहमान से। जहन्नुम में औरतें किस गुनाह की वजह से ज्यादा होंगी? शौहर की नाशुक्री की वजह से। माँ बाप का वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा बच्चों को मिलती है? नाफरमानी। जमीन पर सोने से कौन सी बीमारी नहीं होती? दिल की बीमारी नहीं होती।
परिंदों को सदके का गोश्त खिलाना किनका तरीका है? गैर मुस्लिम का। वो कौन सा जानवर है जिसको जिन्नात नजर आते हैं? भेड़िया। वो कौन सा काफिर है जो जन्नत में जाएगा? जो पैदाइशी पागल हो। वो कौन सी कौम होगी जो इंसानों को खाएगी? याजूज माजूज। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा अमल है जो मुसलमान की उम्र में इजाफा करता है? सदका देना। कौन सी आदत इंसान की अकल को खत्म कर देती है? लालच करना। मुजरिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? 2 रकात नफल। कौन सा फल खाने से पेशाब की जलन खत्म हो जाती है? तरबूज खाने से। किस चीज का तेल नाफ में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? जैतून का तेल। किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? मछली का। 2 सगी बहनों से शादी करना कैसा है? हराम है। कौन सी चीज औरत को जल्द बूढ़ा कर देती है? गम और परेशानी। कौन सी बुराई अगर जरा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा? गरूर और तकब्बुर। बताइए कि वो कौन सी निशानी है जिसके जाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? सूरज का मगरिब से निकलना। कौन सी नमाज का छोड़ना ऐसा है गोया सब कुछ तबाह हो गया है? असर की नमाज। खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से कौन सी बीमारी लाहिक होती है? हड्डियों की बीमारी। वो कौन से सहाबी थे जिनकी नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ाई गई? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं? रोजा रखना। किस चीज को याद करने से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है? गम को। बताइए कि किस इंसान के घर मौत का फरिश्ता रोजाना 2 मरतबा जाता है? हर इंसान के घर। खाना खाते हुए दांतों के नीचे जुबान का आना किस चीज की अलामत है? हकीकत में ये कोई खास चीज की अलामत नहीं है। कितने दिनों तक घर बंद रखने से शैतान आ जाते हैं? ऐसा कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है जिस वक्त शैतान आ सकते हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि बंद घर में ही शैतान आकर अपना बसेरा करें। क्या मरने वाले को पता चलता है कि किसी ने उसके लिए दुआ की है? जी हाँ, उसको बताया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? दिखावे की नमाज। कौन सी औरत घर पर हो तो घर वालों की कोई दुआ कबूल नहीं होती? बद-इखलाक औरत। वो कौन सा जानवर है जो आंखें बंद नहीं कर सकता? मछली। दुनिया में सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? मटर। दुनिया में सबसे पहला कत्ल किस चीज के लिए हुआ था? औरत के लिए। वो कौन सा जानवर है जो आसमान की तरफ नहीं देख सकता? सूअर। बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? बासी रोटी खसूसन सुबह नहार मुखाना मैदे की तेजाबियत, कब्ज और आंतों की बीमारी के लिए मुफीद समझा जाता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड हाजमे को बेहतर बनाता है और पेट की बीमारियों में फायदा देता है, मगर ये इलाज के तौर पर डॉक्टर के मशवरे से ही अपनाना बेहतर है।
ख्वाब में क्या चीज देखना मौत करीब आने की निशानी है। बाज़ रवायतों और लोगों के तजुर्बात के मुताबिक ख्वाब में खुद को कफन में लिपटा हुआ देखना या अपना जनाजा देखना या कब्र में लेटा देखना मौत की तरफ इशारा समझा जाता है। ताहम कतई तौर पर मौत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। ख्वाब सिर्फ तंबीह या नसीहत का जरिया हो सकता है। क्या उल्लू बोलने से किसी पे मौत या कोई आफत आती है? उल्लू के बारे में फैली कहानियां महज देसी अकायद और लोक रवायत पर मबनी है। हकीकत में उल्लू एक मामूली परिंदा है जो रात को शिकार करता है और बोलता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि पुराने जमाने में लोग उल्लू की आवाज को अनदेखी मुसीबत या किसी अनजान खबर की अलामत समझते थे। इस्लामी लिहाज से उल्लू का बोलना कोई नहूसत नहीं बल्कि महज एक जानवर की फितरी आवाज है। घर में ये जानवर ज्यादा हो तो समझ लो कि आप पर जादू हो चुका है। अगर आपके घर में छिपकलियां, काले कीड़े या अचानक काली बिल्लियों की आमदोरफ्त गैर मामूली हद तक बढ़ जाए तो बाज रूहानी उलमा के मुताबिक ये जादू या मनफी असरात की अलामत हो सकती है। खास तौर पर जब उन जानवरों की हरकतें अजीब हों या वो बार बार मखसूस जगहों पर नजर आए तो ये अलार्मिंग साइन हो सकता है। लेकिन याद रखें, आखिरी फैसला सिर्फ रूहानी तहकीक, नमाज और अल्लाह की मदद से ही होता है, ना कि अंधी तकलीद से। जुबान की हिफाजत क्यों जरूरी है? ज्यादातर गुनाह जुबान से ही होते हैं। सूरह यासीन कुरान की किस मंजिल में है? 5वीं मंजिल में। हदीस के मुताबिक इंसान को दुनिया में कैसा बनकर रहना चाहिए? परदेसी बनकर। नफ्स अमारा क्या करता है? बुराई की तरगीब देता है। दूसरों की मदद छुपा कर करने का फायदा क्या है? अल्लाह दुनिया और आखिरत में बुलंद मुकाम देता है। दिल को सुकून किस अमल से मिलता है? अल्लाह का जिक्र करने से। कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद कितनी बार आई है? 70 बार। वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कुरान की वो सूरह जो मुकम्मल एक ख्वाब पर मबनी है? सूरह यूसुफ। वो कौन सी चीज है जो तकसीम करने से बढ़ती है? इल्म। कौन सा अमल नियत पर मुनहसिर है? इबादत। वो इबादत जो फर्ज नहीं मगर जन्नत का जरिया है? तहज्जुद की नमाज। वो कौन सी चीज है जो माँ के कदमों तले है? जन्नत। कौन सी चीज दिल की जीनत है? तकवा। कौन सा अमल गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को? तौबा। किस आसमानी किताब का सबसे अहम मौजू इंसान है? कुरान मजीद। इस्लाम में किस तरह सोना मना है? पेट के बल सोना। दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन किसने किया था? मुसलमानों ने। इस्लामी जिंदगी की इमारत किस चीज पर कायम है? इरकान इस्लाम पर। वो कौन सा फरिश्ता है जो हर इंसान के कंधे पर लिखता है? करामन कातिबीन। कब्र में सबसे पहला सवाल क्या होगा? तेरा रब कौन है? दिल को साफ रखने का बेहतरीन तरीका क्या है? दूसरों की गलतियों को माफ कर देना। बिस्तर पर खाना खाने से घर में कौन सी मुसीबत आती है?
बिस्तर पर खाने से घर में नहुसत आती है, शैतान का दाखिला आसान हो जाता है और बेबरकती और बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है। कुरान पाक को 7 मनाजिल में क्यों तकसीम किया गया? कुरान पाक को 7 मनाजिल में इसलिए तकसीम किया गया ताकि जो लोग हफ्ते में कुरान ख़त्म करना चाहें उनके लिए आसानी रहे। किसी का हक दबाना कैसा गुनाह है? ये बहुत बड़ा जुल्म है और अल्लाह के यहाँ इस पर सख्त पकड़ है। इंसान का कौन सा अमल शैतान को गुस्सा दिलाता है? मिसवाक करना। झूठ बोलने वाले के बारे में इस्लाम क्या कहता है? ये मुनाफिक की निशानी है। कुरान की दुल्हन और असल कुरान किस सूरा को कहा जाता है? सूरा रहमान को।